Hello everyone, welcome to Exam Dos, my dear students. I'm back again with one video that all of you wanted me to take. You all wanted me to talk about BEL. So in this video, I'll tell you all about the BEL recruitment, the strategy, the type of the exam, the syllabus, and what kind of questions you can expect in the BEL examination. So watch the video till the end and every one of your query will be covered in this particular video. So first of all, beta, BEL is a Navratna PSU and it is a Indian's premier professional electronics company. So basically, EC students seek to enter BEL. It is a very important PSU for the electronics people because it is working in the core sector for electronics. They have many products in military, radar, naval, C4I, homeland security, multiple products they are developing. Everywhere you will see the application of embedded system, robotics, all the core sections of ECE. Now, beta, they have released the recruitment. First, let us talk about recruitment. So, probationary engineer in electronics, 175 vacancy. For mechanical, 109. For computer science, 42. For electrical, only 14 vacancy. So, in this video, my focus area is going to be electronics. Okay? Electrical की इतनी कम vacancy, I don't think electrical people are seeking this. So, I'll talk about electronics. So basic pay is 40,000 plus to 1,40,000. CTC is approximately 13 lakh, which is good. So now, beta, in electronics, you must have a BE, BTech, BSc in electronics, EC, electronics, telecommunication, communication, telecommunication. Only 5 degree. For electrical, EE and EEE. Okay. Maximum age limit for unreserved candidate on 1st of October is 25 years. 1st of October को आपकी age 25 maximum होनी चाहिए. For upper age limit will be relaxed by 5 years for SC ST, 3 years for OBC, which is a general government criteria. And for PWBD, it is relaxable by 10 years. Okay. And for PWBD plus category, the age limit relaxation will get added. ठीक है, add हो जाती है. Now, beta, they can recruit for any unit or office at Bangalore, Ghaziabad, Pune, Hyderabad, Chennai, and then Machilipatnam, Panchkula, Kotdwara, Navi Mumbai. तो ये इनके सारे सेंटर हैं. You cannot say that I want to work here or there. They can recruit you at any center that they want. है ना? तो आपको कहीं भी वो लोग पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन, किसी भी यूनिट में पोस्ट कर सकते हैं. So last date of application, you still have time, 1 week or more, that is 14th of November. And beta, the fees is a little high. It is 1180, that is 1000 plus GST. But SC, ST, PWBD are exempted from the payment of application fees. ठीक है. और ESM क्या है? एक्स सर्विसमैन. तो इन लोगों को नहीं देनी है फीस, लेकिन बाकी लोगों को देनी पड़ेगी. तो फीस ज्यादा है बेटा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, तब डिसाइड कीजिएगा आपको अप्लाई करना है या नहीं करना. ठीक है. तो नाउ बेटा, व्हाट इज द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस. तो आपका एक सेंटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 1:5. अब जैसे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 175 वैकेंसी है, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से लाइक 17 into 5, 85 ना, 850. So almost 800 candidates will be selected for interview, which is a very good ratio. Even in GATE exam, they might not call for interview up to the 800 rank. So you have to just like target to lie in the first 500 students in order to get an interview call. And just like other PSU beta, the weightage for CBT is 85 marks and interview is only 15 marks. Now, why is this important beta? Because if you score well in the written test, then even if your interview is not up to the mark, then also you can get selected. तो आपको रिटर्न टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है. रिटर्न टेस्ट ही आपके फाइनल सिलेक्शन को डिटरमाइन करेगा. इंटरव्यू थोड़ा 19-20 भी होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क आपके रिटर्न टेस्ट से आने वाला है. तो CBT is of 2 hours. The total number of question are 125, 100 technical and 25 are aptitude and reasoning. Every question for 1 mark, negative 1/4 marks for each wrong answer. तो बेटा सिलेबस जो होगा ना आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और उधर एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको प्रिपेयर करना है.
देखो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आप चाहो तो मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। यू कैन रेफर टू माय यूट्यूब प्लेलिस्ट इन विच आई हैव टॉट एप्टीट्यूड एंड इवन ऑल माय टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर देयर ऑन यूट्यूब। एंड इफ यू वांट टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन हैपेंस, you can watch my crash courses. All my subject crash courses are there available on the YouTube. Now one thing is important, sir, when will the exam be conducted? So beta, because the forms are closing on 14th of November, you can expect a gap of 4 to 6 weeks for the actual exam. 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपका एक्चुअल एग्जाम होना चाहिए। पिछला एग्जाम जो इन लोगों ने कराया था ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते का ही गैप दिए थे, लेकिन क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं किया तो आप 4 हफ्ते तक का गैप मान सकते हो। दैट मीन्स यू हैव अराउंड 30 days to prepare for this BEL examination in case you are interested. Now, what is the syllabus for EC? The first topic is EDC, which also includes the analog electronics, digital electronics, communication, microprocessor, signal, control, EMFT, network, and measurement. So, measurement is the only subject which is not included in your GATE syllabus, but it is being asked in the BEL. For measurement, beta, you can refer to my measurement course, which is freely available on our exam those website and app. So it is available under free downloads. अगर आप free download में जाओगे, measurement का कोर्स है, 15-16 लेक्चर होंगे, उसमें पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 20-25 आवर्स एंड यू कैन प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इजीली रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कट ऑफ कितना गया था बीएल सीबीटी एग्जाम जो 2025 में अभी इन्होंने कंडक्ट कराया था। अनरिजर्व्ड में मैकेनिकल का 92, ईसी का 87.5 गया था, ओबीसी में 1-2 नंबर 5 नंबर कम जाता है, ईडब्ल्यूएस के अंदर काफी लो चला जाता है, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी के अंदर। तो यू शुड टेक अ टारगेट ऑफ स्कोरिंग out of 125 marks, your target should be 100 marks, so that if you can cross 90 then it will be very very good for you. But target 100 का ही लेके चलो कि 125 में से 100 मार्क्स पाने। क्या सर 100 मार्क्स पॉसिबल है? यस, क्योंकि देखो क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। जैसे सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, ये डबल होता जा रहा है तो 96 आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए ये आ गया आपका, जो कि वेन डायग्राम से हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। फिर ये देखो यहाँ पे भी ये सीरीज कंप्लीट करनी है, सीरीज नहीं सॉरी, यहाँ पे सिंबल से रिप्लेस कर दोगे, एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर देना। फिर ये सीरीज कंप्लीट करनी है, देखो AECGEI, 2-2 लेटर बढ़ते जा रहे हैं, कितना इजी है, GHIKLM, तो IM आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये देखो ये भी नॉन टेक्निकल का कितना इजी पूछा है, सिटिंग अरेंजमेंट पे पूछ लिया है। फिर ये देखो ये डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्योंकि एनओपी के अंदर क्या होता है आपकी जो है ना एक ही साइकिल लगती है, तो 3 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से सॉरी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है जिसमें 4 टी स्टेट होंगी, तो 3 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से आपका आ जाएगा 4/3 1.33। कोडे प्लॉट में ऑर्डर ऑफ सिस्टम कैसे पता चलता है? ठीक है, ये पता करना होता है कितनी बार फेज आपका चेंज हुआ है। डिजिटल कम्युनिकेशन में एसएनआर क्या बताता है? एसएनआर ये बिट एरर रेट डिक्रीज करता है। मतलब डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप देखोगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि आप बहुत इजीली एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। इस समय पे आपको क्या करना है, अगर आप गेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो बीईएल के लिए सिर्फ आप क्रैश कोर्सेज से प्रिपेयर करो और उसके अंदर भी ज्यादा फोकस आपका थ्योरी पे रहेगा एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। ठीक है, so you will be more focused on the theory part of this examination because most of the questions are theory and they are very very easy, and hence you have to target getting above 100 marks out of 125. Then only you can consider yourself to be safe in this exam. Okay, एंड बेटा इसके अलावा देखो और भी है मेरे पास। इसमें से कौन सी डिवाइस का लो पावर कंजम्पशन होता है? सीमॉस का। फास्टेस्ट कौन सी लॉजिक फैमिली है? ईसीएल लॉजिक फैमिली है। फेज मॉड्यूलेशन में फेज को क्या होगा, जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो फेज आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फेज में जो वेरिएशन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सीरीज आरएलसी की रेजोनेंस पे इंपीडेंस क्या होती है? मिनिमम आती है, प्योरली रेजिस्टिव होती है। करेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल 0011 1010 एंड 1001 हो गया, खत्म 3A9। तो इतने इतने हलवा क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सर अगर हमको प्रैक्टिस करने हैं तो हम कहाँ से कर सकते हैं बेटा? इस तरह के क्वेश्चन आप AJE लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे।
और अगर हमारे चैनल से आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मैंने एजेई वाले बच्चों के लिए एसएससी और आरआरबी के क्वेश्चन करा रखे हैं। आप आरआरबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, जिसमें आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी देखो यार, अगर आपको रिवीजन हमारे साथ करना है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें कि बीएल की भी तैयारी हो जाए, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए बेटा। जैसे देखिए, अभी हम सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पे आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 3 मंथ्स पे प्लस 40% ऑफ। कोड लगाना है YT40। रिवीजन के लिए आरआईबी का हिस्सा बनना है तो 60% ऑफ प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। इसमें गेट और आपका बीएल का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप रिकॉर्डेड में 12 या 24 मंथ्स के लिए जाते हो तो 3 मंथ या 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस 40% ऑफ प्लस टेस्ट सीरीज। कोड है YT40। अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स की, सर मुझे तो लेटेस्ट कोर्सेज चाहिए, अगर उसमें आते हो तो 60% ऑफ प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है। एंड देन आपका यही ऑफर ईसी और आईएन के लिए भी एप्लीकेबल है। और अगर आप एजेई का पैक खरीदते हो तो एजेई पे 40% ऑफ प्लस आपको एक्स्ट्रा मंथ मिल रहा है। लेकिन देखो, डिसीजन आपको कल रात तक लेना है। कल रात तक अगर आप डिसाइड करते हो तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। उसके बाद आई कैन गारंटी यू वी आर शटिंग डाउन दिस ऑफर। ठीक है, ये ऑफर कल रात को एक्सपायर कर जाएगा। और टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो अंकित ईएससी कोड लगा देना, 60% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी है। अब ये कैसे डिसाइड करें देना है नहीं देना, क्योंकि देखो यार, टाइम फ्रेम बहुत नहीं है एग्जाम में। तो अगर आपकी गेट के सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ है एटलीस्ट थ्योरी पे, तो आपको इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि फीस काफी ज्यादा है। और अगर गेट के सब्जेक्ट्स पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है मेरे भाई, तो फिर आपको जो है ना, मेरे को नहीं लगता ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आपको तकलीफ आएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।